good evening. This is Akashwani Itanagar with producer Gyati Hangu. This is Morgan welcoming you to another edition of the Weekly Sports Roundup. The state's first national Grade A judo referee, Madin Hina, officiated in the ongoing Khelo India University Games in Lucknow as technical official. With this, he also became one of the first from Arunachal to officiate in such an important event. He was enlisted in the technical official panel of the KIUG because of his technical skills, which he showed in the Junior National Judo Championship, which had been held in Jharkhand, and in the Sub-Junior and Cadet Championship in Chennai, the Arunachal Judo Association informed. Arunachal Pradesh will host the 5th Junior Boys National Boxing Championship at the Don Bosco College in Jolang from 9th to 14th July. Around 800 boxers and officials from 28 states and union territories are expected to participate in the event, the Arunachal Amateur Boxing Association informed. This is the first time that the state is hosting a national boxing event. The Itanagar Cycling Club organized the Arunachal XCO Cup, the state's first dedicated cross-country Olympic race, at IG Park to commemorate the World Bicycle Day on 3rd June. The theme of the 4.5-kilometer long event was Riding for a Sustainable Future. Lijum Erta emerged champion of the first leg, while Akago Mobin and Lijum Lolen were first runner-up and second runner-up respectively. Northeast Frontier lifted the 7th Inter-Frontier Football Tournament trophy after defeating Northwest Frontier by 1-0 goal in West Siang District. Cadet Moiropo was adjudged Player of the Match, while Chandra Haiburu of Northwest Frontier was adjudged the best goalkeeper. 5 teams had participated in the tournament. And in today's series of a tete-a-tete with a sports person from the state, we have with us in our studio Ms. Liza Kamsa. She is a weightlifter from East Kameng district of Arunachal Pradesh. So let's hear from Liza Kamsa. Liza, सबसे पहले आपको हमारा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. रिसेंटली जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें आपने ब्रॉन्ज लेकर आई है. जी. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. थैंक यू मैम. लीजा, अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए. मेरा नाम लीजा कमसा है और मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट सेपा, और मेरा मम्मी पापा फार्मर है और मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ. और आप कब से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया और आपने वेट लिफ्टिंग को ही क्यों चुना था? मैं 2016 जून 2016 में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया था. वहाँ मैं STC में शुरू किया था अपना वेट लिफ्टिंग का करियर. और मैं वेट लिफ्टिंग इसलिए चूज़ किया क्योंकि वेट लिफ्टिंग एक ऐसा गेम है, बहुत एक इंडिविजुअल गेम है. बहुत लोग ऐसे सोचता है कि वेट लिफ्टिंग वेट उठाना ताकत का काम होता है, बस जिसके पास ताकत होते है वही उठा सकता है. लेकिन वेट लिफ्टिंग ऐसा गेम नहीं है. वेट लिफ्टिंग एक ऐसा गेम है, स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव और टेक्निक का बहुत इस्तेमाल होता है इस गेम में. और एक वेट लिफ्टिंग का एक स्नेज जो होता है उसको आप लोग प्लेटफॉर्म में हो या कंपटीशन प्लेटफॉर्म में हो, उसमें आप 2 सेकंड में करना पड़ता है. बहुत ही टेक्निकली गेम है ये, जो ताकत से नहीं होता है. और मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी वेट लिफ्टिंग की, इसलिए मैं उसको ज्वाइन किया. ओके. एंड अभी तक हाउ मेनी मेडल्स हैव यू वॉन? मेरा नेशनल में 6 मेडल्स है. 6 मेडल में से 3 ब्रॉन्ज है, 2 सिल्वर है, 1 गोल्ड है. ओके. एंड रिसेंटली जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी पे आपने पार्टिसिपेट किया था और आपने मेडल भी लाया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हमारे साथ शेयर कीजिए. मैंने बहुत सारा ऐसे नेशनल चैम्पियनशिप खेला, जैसे जूनियर और यूथ का खेला ना, पर उसमें जो फैसिलिटीज़ दिया है गेम्स में कई गुना दिया है. मतलब उसे जूनियर से बहुत ज़्यादा सीनियर में फैसिलिटीज़ दिया गया, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का, रहने की जगह, जैसे डाइट्स, और जिस तरह से उन्होंने केयरिंग किया कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए. मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग मिला. जैसे सीनियर गेम्स का फर्स्ट एक्सपीरियंस में सब कुछ, मतलब जूनियर से ज़्यादा फैसिलिटीज दिया गया था, डाइट से सब कुछ. और वहाँ का कंपटीशन प्लेटफॉर्म, वार्म अप प्लेटफॉर्म और जो ट्रेनिंग करने की जो प्लेटफॉर्म रहता है ना, नेशनल गेम्स जो सीनियर में बहुत अच्छा से दिया गया. मतलब जिस तरह से सीनियर, मुझे जो ये गेम जाके ऐसे फील हुआ कि मैं एक सीनियर प्लेयर हूँ और उन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ रहने को दिया. और
बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिला उधर से, और सब कुछ बहुत नया था मेरे लिए, बहुत एक्सपीरियंस मिला इस गेम्स में। स्पेशली वो लोग का स्टेट जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का वहाँ का जो स्टेट है, वहाँ में बहुत ज़्यादा सीनियर गेम्स खेल के मुझे एक्सपीरियंस मिला। ओके, कौन सा स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। एंड हाउ मेनी स्टेट्स के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे? इंडिया का जितनी स्टेट है मैक्सिमम वहाँ आया था। मैं एक्चुअली काउंट नहीं किया हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेट का यंग जो स्पोर्ट्स पर्सन है वहाँ में, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं लोग, बहुत ज़्यादा आया था वहाँ में। मैक्सिमम बहुत सारा था, और कई लोगों ने जीता, कई लोगों ने हारा। मतलब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए थे पार्टिसिपेट करने? जी जी, बहुत ज़्यादा था। ओके, एंड हाउ सपोर्टिव आर योर फैमिली मेम्बर्स? मेरा फैमिली मेम्बर्स में से सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरा पापा है। मेरा पापा और मम्मी, और जो हमसे बड़ी दीदी है सिस्टर, वो करता है। लेकिन जो फैमिली ग्रुप्स होता है बहुत ज़्यादा, मेरा फैमिली में से वो लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ मेरा पापा और दीदी सपोर्ट करते हैं। वो लोग पूछता है ना, कंग्रेचुलेशंस कहता है, लेकिन वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करता कोई। ओके, तो आपका फैमिली में आपको सपोर्ट करने वाले आपके पापा हैं और दीदी हैं। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, किसी को भी, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेस या डाइट मेंटेन करने पड़ते हैं, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फिट? मेरा फिटनेस रहने का राज है कि मैं सुबह में 2 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ और शाम को 2 घंटा। और यही सिर्फ नहीं है, जिससे आप डाइट को मेंटेन करना पड़ता है, और आपको जिससे भी रात को 8 आवर्स सोना पड़ता है। सुबह में एक्सरसाइज के बाद भी आपको इवन रेस्ट करना पड़ता है दिन में 1 आवर, और बहुत सारा चीज़ें। एक्सरसाइज भी मैं एक दिन करता हूँ, एक दिन नहीं करता हूँ, ऐसे नहीं, बहुत वीकली वैसे करना पड़ता है। जैसे भी कंपलसरी 2 आवर्स इवनिंग, 2 आवर्स मॉर्निंग। साथ में मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अपना जो डेली, जैसे नॉर्मल इंसान को जो डाइट रहता है, उससे मेरा डाइट नहीं रहता है। मेरा एक सीक्वेंस, एक डाइट है स्पोर्ट्स पर्सन का ना, एक फिट रहने का एक सीक्वेंस, एक डाइट रहता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ओके, एंड अब जो सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा करते हैं, वो एवरीडे करते हैं? जी, मैं एवरीडे करता हूँ एक्सेप्ट संडे। एक्सेप्ट संडे। ओके, एंड किस तरह के एक्सरसाइजेस करते हैं? जैसे मैं ज़्यादातर वेट लिफ्टिंग का ही करता हूँ, साइड वर्कआउट। जैसे वेट लिफ्टिंग का ट्रेनिंग भी 2 आवर्स ही होता है। उसमें साथ में जैसे कि वेट लिफ्टिंग का जो प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग होता है 1 आवर ना, उसके बाद 1 आवर अपना मैं साइड एक्सरसाइज कर लेता हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा साइड ऐसे वर्कआउट होता है, उससे मैं कर लेता हूँ। आपके हिसाब से हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू हैव अ कोच इन वेट लिफ्टिंग? प्रेजेंटली आपका कोच कौन है? वेट लिफ्टिंग में इसलिए स्पेशली स्पोर्ट्स में कोच का होना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट कोच इवन आप कंपटीशन में भी कंप्लीट नहीं कर सकता। कंपटीशन में भी अदर प्लेयर के साथ कंप्लीट नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल रहता है विदाउट कोच का। कोच होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका सक्सेस 50% है, कोच का साथ 50% चाहिए ही होता है ना। कोच सबसे इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स लाइफ में। और मेरा इवन ये गेम में भी कोच का बिना इम्पॉसिबल था एक्चुअली में। अगर कोच ना हो तो मुझे ब्रॉन्ज भी नहीं मिलता। कोच ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कोच। और मैं जब गेम खेल रहा था तो उसमें भी कोच का बहुत बड़ा रोल है मेरा लाइफ में ना। जो जितना भी मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, कोच सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, स्पेशली वेट लिफ्टिंग का। और अदर गेम्स में भी ऐसा है, कोच बहुत इम्पोर्टेंट। और मेरा NCOE में जो कोच है, मैं जहाँ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, वो आंध्रा से है, राजा शेखर, वो मेरा कोच है। ओके, प्रेजेंटली वो है आपका जी कोच। जी। और आप जो पहले अरुणाचल को भी रिप्रेजेंट की थी और इस बार आपने आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट किया, जी जी। तो आप अरुणाचल में और आंध्र प्रदेश में डिफरेंस क्या मिल रहा है? डिफरेंस अरुणाचल में खाना पीना में। मैं एक्चुअली अरुणाचल में ट्रेनिंग करता हूँ। इस साल ही आंध्र प्रदेश रिप्रेजेंट किया हूँ। आंध्र प्रदेश में क्या होता है कि मैं पहले आंध्र प्रदेश का ही बोलना चाहूँगी। वहाँ का मतलब डेवलप है हर एक चीज़ जो ना, जैसे यूनिवर्सिटी में, मतलब जो अरुणाचल में इतना डेवलप नहीं है, वहाँ में है। जैसे कुछ जैसे कि कुछ सिग्नेचर लेना हो या कुछ भी करने के लिए, मीन्स एवरीथिंग ना, वहाँ में ज़्यादा डेवलप है। एक्चुअली अरुणाचल में मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी ना, मैं यहाँ से बहुत रिप्रेजेंट करने का मन था, लेकिन यहाँ का यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं ज्वाइन किया हूँ ना, वहाँ मुझे एलो नहीं किया था एक्चुअली में। और डिफरेंस तो है बहुत।
डेवलप का ही डिफरेंस है। जैसे यहाँ का लोग अच्छे, मुझे अरुणाचली अच्छे लगते हैं, लेकिन डेवलप का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे स्कूल्स का, फैसिलिटीज़ का और ये यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे वहाँ में जल्दी रेस्पॉन्स मिल जाता है ना सब कुछ। जैसे कि हमको कुछ चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए ना, बहुत जल्दी रेस्पॉन्स मिल जाता है। यहाँ हमारा अरुणाचल में बहुत मुश्किल रहता है। मैं बहुत कोशिश किया हूँ यहाँ का रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन एलोन मतलब एलोन नहीं है ऐसा बोलता है। और वहाँ में जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट करने से थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाता है यहाँ में, लेकिन एलोन नहीं किया तो क्या फाइनेंशियल मिलेगा ऐसे। अच्छा, तो आपने फाइनेंस के बारे में बात किया, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, जब भी आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो अरुणाचल में हो या अरुणाचल के बाहर, फाइनेंशियल मदद आपको कहाँ से मिलता है? मुझे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी से मिल जाता है। जहाँ मैं ट्रेनिंग करता हूँ ना, ये एक बहुत बड़ा सेंटर हम लोग का, नेशनल एक्सीलेंसी बोल के ईटानगर चिंपू में है, वहाँ से मुझे मिल जाता है। ओके, तो आप जब भी जाते हैं कोई कंपटीशन के लिए तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता है? बहुत प्रॉब्लम होता है, बस वो लोग ट्रांसफ़र का कर देते हैं ना, और रहने का कर देता है, लेकिन कुछ खरीदना हो या कुछ खाना हो वो लोग हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते। कभी कभी खुद भी मैनेज करना पड़ता है। वो लोग का सबसे अच्छा चीज़ है कि बस ट्रांसफ़र का अच्छा से कर देते हैं ना, आने जाने का अच्छे से कर देते। खाना पीना कभी कभार हम लोग खुद कर लेता हूँ ना, बहुत मैनेज करके करना पड़ता है। और कभी कभी वो लोग देता है, लेकिन बहुत सिचुएशन मतलब बहुत ज़्यादा, जितना भी ज़रूरत देना, जितना ज़रूरत उतना नहीं दे पाते, आधा आधा ऐसे थोड़ा दे देते। ओके, हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? ऑफ कोर्स मेरी कॉम। ओके, मेरी कॉम। और वेट लिफ्टिंग से कोई? वेट लिफ्टिंग से या सांबोलापू, अरुणाचल के ना जी। एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? फ्यूचर प्लान्स तो मेरा ओलंपिक तक जाने का है। मुझे बहुत माने कि मैं एक बार ओलंपिक प्लेटफॉर्म में परफॉर्मेंस करूं, अपना अरुणाचल का स्टेट का जो रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि इंडिया में जितना भी है कहीं ना कहीं स्टेट से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी भी बोला मेरे को, उन्होंने मणिपुर रिप्रेजेंट किया कि कहाँ का है बोलने से, इंडिया से कहाँ का है बोलने से मणिपुर का बोलते हैं ना। मुझे भी ऐसे बहुत रिप्रेजेंट करने मन है ओलंपिक में जाके। इंडिया कौन सा स्टेट से, मतलब अरुणाचल से मुझे बहुत ऐसे रिप्रेजेंट करने का मन है। इसलिए मेरा फ्यूचर प्लान है पहले ओलंपिक तक जाने का, लेकिन उससे पहले मुझे इंटरनेशनल और जो नेशनल चैम्पियनशिप सीनियर में होता है, मुझे वो खेलना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल से खेलना पड़ेगा। बहुत सफ़र बाकी है मेरा। ओके, एंड आई होप कि आपका ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल ज़रूर हो। ओके लीजा, एंड फाइनली व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द अपकमिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स? जो अरुणाचल, स्पेशली अरुणाचल का जो अपकमिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स है ना, आसान नहीं है। बहुत जैसे होता है ना तपस्या करना जैसे होता है स्पोर्ट्स, जो आपको जल्दी सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। ऐसे मैंने कई दोस्त लोग को भी देखा है, जैसे एक दिन, जैसे एक साल ऐसे खेलने के बाद ऐसे खुद को मान लेता है कि मैं और नहीं कर पाऊँगा, मैं हार मान चुका हूँ कि मैं और आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। इससे बहुत ज़्यादा एक्सक्यूसेस बोल के भी नहीं है, वो लोग एक्चुअली प्रॉब्लम रहता है, लेकिन उसका कारण से वो लोग हार मान जाता है। लेकिन वो लोग को कहना चाहूँ कि हार मत मानो, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा, आपको इसको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने अभी भी कर रहा हूँ, मैंने बहुत किए हैं। स्पेशली अरुणाचल हम लोग का जो सेंटर है ना, स्पेशली उसमें भी एक तो ऐसा है कि छोड़ देते 1 साल का बाद ना, चाहे जिससे भी प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग हार मत मानो, यही कहना चाहूँगी मैं। ओके, आपने बहुत सही बात कही लीज़ा। आपने हमारे स्टूडियो में आए और आपने और वेट लिफ्टिंग के बारे में काफ़ी बातें शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। That was Lisa speaking for the Weekly Sports Roundup. And with that, it is a wrap on this week's edition of the Weekly Sports Roundup program, which came to you from the station of All India Radio, Itanagar. We'll be back next Friday, same time at 7:30 p.m. Until then, have a happy weekend ahead. Good night.